ये सेक्स के बारे में बात करती है तो if you are sexually aware and mindful, you can even know when you are connected to your own world. There is a world inside. हम सारे 5 तत्व हैं. ये सब भी 5 तत्वों से बना है और मेरे अंदर भी वो 5 तत्व हैं. And similarly, sex is a way to get connected to all those 5. आपके पास पैसा अच्छा है. पहली गलत चीज जो आप करोगे वो शायद सेक्स हो सकती है. I have many patients who come and says, मैम मेरे को ना थ्रीसम करना है, मेरी वाइफ को मना लो. द नेक्स्ट पार्टनर ही माइट किल द लेडीज हु इवन क्वेश्चंस. और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज सेक्स. सेक्स इज द मोस्ट इंटीमेट फॉर्म ऑफ कनेक्शन दैट यू कैन फॉर्म विद एनीवन. बट ऑन द अदर हैंड फ्रॉइड ये भी कहते हैं कि सेक्स कैन बी एवरीवन्स स्ट्रेंथ और वीकनेस. आज हम इस फिनोमेना को समझेंगे और ये भी समझेंगे कैसे इंडियंस आर नॉट वेरी क्रिएटिव इन सेक्स ऑल्दो वी आर क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग कामा सूत्रा. Also will touch base upon the spirituality and meditation in sex. Can it actually lead towards a path to spirituality and self-discovery? इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि कैसे पॉर्न आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे आपकी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन को खत्म करता है. ये सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे बिकॉज वी हैव विद अस आवर गेस्ट डॉक्टर नेहा मेहता. डॉक्टर नेहा मेहता, वेलकम टू हील इट. हील इट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है by disseminating the right information about mental health to our younger generation. Right. Ma'am, today's topic is very interesting and you are a subject matter expert of the same. I want to start with a very prominent question. Do you think the taboo around sex still exists wherein we are compulsive to produce more like us, or the definition has evolved with time? see, the taboos around sex are still there, okay? But the only thing that has changed is people started talking about it. Now people understands that there are people of our same framework or the mindset who understands, who listens, or if we'll talk, it's more like a fun matter now. I remember the comedies previous days are more about hidden sexual works, है ना, कि कुछ बात हो रही है और उसमें बस ऐसे बोल दिया है ना. But now it's so open. I have seen the stand-up comedians talking about sex so openly. I have recently seen a Harsh Gujral stand-up comedy where he was openly talking about cuffing sex or making it more. And it went so lively, the threesomes and everything. Now people understand, they talk, they want to explore, they still want to know what is new cooking up these days and how people are doing it. There was a time, I still remember there was a time that's when I was studying in 2018 around, then this wife swapping was somewhere a crime patrol series वाला topic है ना कि oh my god ये क्या बात है. लेकिन अब I think people are openly talking. Now I've seen the articles where like guys coming up and say ki this is a good culture and doing it. People are talking, but people are not opening up their mind about accepting it. They are not giving emphasis on providing pleasures. They are just knowing the ways. They want to know, अच्छा फिर ऐसे कैसे करते हैं और कौन सा position होता है, ये करता है, बस बातें हैं. But when it's about actually implementing it, and वो बोलते हैं एक होता है कि रास्ता सीधा पहुंचना और एक होता है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करना. वो स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहते. They just want to go towards it, come back and tell people I have done it. So it's more about talks, hoarding, boasting, but it's not about implementing and doing it peacefully, mindfully and pleasurefully. सेक्स जो है मैम सबसे इंटीमेट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है दैट यू कैन फॉर्म विद एनीवन. Right. इमोशनल लेवल पे भी आप सबसे ज़्यादा किसी से जुड़ सकते हैं इज थ्रू सेक्स. Exactly. I want to understand the psychology of sex while we are undergoing or while we are actually performing this act of sex. हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट क्वेश्चन है. मैं बताऊँ हमारी स्टडीज़ में 1 साल यही पे था साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, विच इज़ लाइक एक क्वेश्चन में समअप करना थोड़ा मुश्किल है बट ऐसे समझिए. साइकोलॉजी सेज दैट रोटी कपड़ा मकान एंड सेक्स इज आर बायोलॉजिकल नीड. इट्स नॉट समथिंग कि जिसे हम स्किप कर सकते हैं. ओके, देयर इज़ अ ड्राइव मॉडल, ठीक है, मोटिव मॉडल जिसे हम कहते हैं. साइकोलॉजी की बुक्स में 11th-12th की बुक्स में भी है. उसमें लिखा हुआ है वी हैव अ बायोलॉजिकल ड्राइव एंड वी हैव थिंग्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल और अ साइकोलॉजिकल ड्राइव. जैसे पावर एक साइकोलॉजिकल ड्राइव है, बट सेक्स इज अ फिजियोलॉजिकल ड्राइव. ऑल दीज थिंग्स जैसे
अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएं तो वो बोलते हैं कि इंद्रियों से वशीभूत होकर ये चीज़ें हैं, काम है, वासना है. लेकिन यहाँ पे अगर हम समझेंगे कि ये बायोलॉजिकल है. इफ़ यू ग्रो अप, इफ़ यू ग्रो मेच्योर, सेक्स इज समथिंग दैट यू वांट टू हैव. यू कैन नॉट स्किप इट. ओके, ओनली दोज कैन स्किप इट हु सेज मैं तो भाई अब वैराग्य है, अब तो मुझे कुछ सोचना नहीं. दैट मीन्स इट इज समथिंग दैट यू आर बोर्न फॉर, बोर्न विद, बोर्न फ्रॉम एंड बोर्न फॉर. तो ये तीनों चीज़ें इंक्लाइंड हैं. आप ये नहीं बोल सकते कि जो सेक्स के बारे में बात कर रहा है वो गंदा है, या जो सेक्स करता है वो गंदा है, या जो सेक्स के बारे में पढ़ना चाह रहा है या पढ़ाना चाह रहा है वो बुरा है, क्योंकि इट इज़ समथिंग यू आर लाइक बोर्न विद. सो you are born with an organ, either it is a feminine, non-feminine, whatever. So you're born with an organ. So sex is something which is very important. Now let's relate it with the food thing or sleep, है ना. अब हमें लग रहा है हमारी नींद, हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी नींद थोड़ी, and how you crave for it, है ना. And once you get your sleep, how relaxed, how rejuvenated you feel, है ना. You feel that power up back, okay. And similarly with the food, है ना, हम खाना नहीं खा रहे, you crave for it. And once you have it, you feel somewhere satiated, or you feel happy, or you feel complete, है ना, and gives you an energy. Similarly, sex is that biological need that you keep on craving till you get it, if you are a routine sex taker or lover or provider. But once you get it, you feel an elated sense of being. You feel worthy, you feel connected, your hormones feel somewhere connected, and you feel spiritually be you. You feel your souls get satisfied. Body to chodo, your souls get satisfied. Just ask this question to the couples who frequently do sex and their partner go out for a month or so. I bet they keeps on trying, connecting them on call, just talking some dirty talks with them. So it's that important. And if you are not getting a pleasurable and let's say it's called a full sex where you are hormones also getting full, you will not able to concentrate on any other psychological biological drive. मैम यहीं से मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहूँगा, एंड इट इज़ वेरी मच prominent with the Indian audience. People in India don't know how to have an enjoyable sex, and it is not me, but the statistics states the same. Although we come from the land of Kama Sutra, why Indians are not able to have a pleasurable and enjoyable sex? Because ये वो ड्राइव है, या ये वो जैसे हम बोल सकते हैं कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में ना लोगों को लगता है कि इसके बारे में बात करना इज़ मोर टू वेस्टर्नाइजेशन. स्टार्ट हमने किया है, वहाँ पे तो ये सब हो रहा है, वहाँ पे वो लोग इसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं. 50-60s में दे आर वेरी एक्टिव. आई हैव सीन 60s में दे आर गेटिंग द सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज डन एंड हैप्पीली सेइंग मैंने तो शादी करी है. दे आर हैविंग देयर बॉयफ्रेंड्स इन 70s, है ना. लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी तीसरी शादी कर ले, डाइवोर्स कर ले, तो बोलते हैं ये तो वेस्टर्न हो रहा है ना, एंड पता नहीं क्या ही विचार हैं एंड एवरीथिंग, कि कैसे एग्जैक्टली एंड द फीमेल्स आर बीइंग ब्लेम्ड स्लट, और ये तो ऐसी ही है, करेक्टर डाउन एंड एवरीथिंग. Sex cannot make get your character. Changing partners and not being satisfied with the one can be a question to character. And it's not about changing partner. Character तो जो बार बार कपड़े भी बदल रहा है, या बार बार जो भेस बदल रहा है, या जो बार बार बंदे बदल रहा है, बार बार पैसे बदल रहा है, जॉब बदल रहा है, उसका भी करेक्टर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. Changing things is a question of character, not about sex and gender. ठीक है. तो हमने कामसूत्रा डिफाइन किया. हमारे जब एशियंट बात करूँ मैं सेक्स की, खजुराहो हैज़ लॉट्स ऑफ पोजिशंस वेरी ओपन. ओके, वी हैव एवरी शास्त्रा, पुट एनी शास्त्रा अप, देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स. वी योग शास्त्र, उसमें इतना अच्छे से सब कुछ लिखा है. एंड फ्रॉम द लिटिल बिट्स ऑफ टीजिंग, आई मूवमेंट्स, तांत्रिक सेक्स, एवरीथिंग इज़ देयर. बट वही बात है कि हम क्रिएटिव, हमें लगता है ये चीज़ ऐसी है जो अपने आप आ जाती है. इसको सिखाना क्या होता है? अपने आप तो खाना बनाना आ सकता है, लेकिन खाने का स्वाद नहीं आ सकता है, और वो भी आपको अपने आप नहीं आता है. बच्चे 7-8 साल के, हम कुकिंग ही नहीं करेंगे तो अपने आप कैसे आ जाता है? मुझे तो नहीं समझ में आता. वो तो उल्टा किसी से पूछेंगे और कोई कहेगा हम कुकिंग करते होंगे, बकवास है ये, है ना. तो आता कब है? जब वो ऑब्जर्व करते हैं, जब वो देखते हैं, पॉर्न देख रहे हैं लोग, उसके बारे में बात कर रहे हैं, देन दे ट्राई. सो एवरी आर्ट, सेक्स इज एन आर्ट. Be it cooking, be it drawing, be it dancing, every art needs to be taught by professional. और इंडिया में तो खासकर कि जब इतना दबाया जाता है, Exactly. तो वो आर्ट निकल के आएगी. पर दबा रहे हैं लेकिन कर रहे हैं.
तो मैम ऑफ कोर्स ना, तभी तो देखो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया की है. यस तो हम दबा रहे हैं लेकिन कर रहे हैं. बट वही बात है कि अगर हम अभी भी हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ऐसा ना हर किसी को पता होना चाहिए, बट अभी भी आधे से ज़्यादा लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं पता है. आधे से ज़्यादा लोगों को पीरियड्स डेट्स या ओव्यूलेशन डेज को ट्रैक करना नहीं पता है. कितने सारे लोगों को ये नहीं पता कि कॉन्डम्स का यूसेज कैसे होना चाहिए. कितने लोगों को पोजिशंस नहीं पता है. आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग केस है. There was a couple who was like regularly visiting, 34-35 years का couple है. अब वो मुझे ये कह रहा है कि हमसे ना हो नहीं पा रहा है. हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है. हो नहीं पा रहा है, एज इन की किडनी हो पा रहा है या दे वर नॉट एबल टू डू इंटरकोर्स. हो नहीं पा रहा है. ठीक है. सो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो बीइंग अ डॉक्टर हमारा ध्यान वहीं जाता है कि देयर माइट बी एन इजैकुलेशन इशू और इरेक्शन इशू और द वाई वजाइना इज टाइट और माइट हैव ऑल दिस. तो हम वो पूरा डिटेल डिस्कशन हो रहा है, पूरा हिस्ट्री लिख लिया एंड एवरीथिंग. उसके बाद दे विजिटेड मी. मैंने बोला क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बात ही नहीं कर रहे हैं ना. वो डॉक्टर पूछ रहा है, वो हाँ कर रहे हैं, खुल के नहीं बता पा रहे. ठीक है. तो जूनियर्स से मेरे पास केस आया, उन्होंने बोला क्या नहीं हो रहा है. तो बोले बिल्कुल ही पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है. सब ठीक है, पता नहीं छोटा भी है, साइज वाला भी इशू है, ऐसे भी. अब खूब बातें हो गई. And ultimately, when we discussed in detail, we got to know they don't know what position is suitable for them. God has made us different. Everyone is different. Everybody body is different. Their ratios is different. एक position हर किसी पर वैसे भी implement नहीं कर सकते. Similarly, a simple way of foreplay, which you see कि ये foreplay है, you have to suck the breast, you have to do this, then it's not same for everybody. For some people, kissing is and for some people, kissing is so pleasuring. है ना? For some people, love bites are painful, but for some people, love bites passionate, right? So it's different for different human. A single formula will not work. So if you feel इसके बारे में पढ़ना या बात करना is dirty or it's below the belt or it's for views, right? So we are doing this podcast not for views. We are doing this for making people understand that it's equally important as you are sipping a cup of coffee. It's important. I can even have this coffee in a plate में डाल के ना ऐसे ऐसे करके. हाँ, but it's not etiquette. So you have to learn how to have it so that I can enjoy in my cup. How do you see the younger generation today? See, the younger generations are open. They are talking. They are discussing. They want to know new ways and everything. But they are quickly switching people. See, this is also very important. If I bought a chocolate, okay, I know the brand. मेरे से पहले लोग खा रहे हैं, बढ़िया चॉकलेट है, मैंने ट्रस्ट पैसे करके उसको खरीदा. बट इफ आई टेक अ बाइट एंड आई बढ़िया नहीं है, फिर मैंने दूसरी खरीदी, फिर बढ़िया नहीं. द ओनली वे टू गेट दिस प्लेजर एंड कंप्लीटनेस व्हेन यू कीप इट स्लो, व्हेन यू डोंट चेंज इट, व्हेन यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. ओके, सम चॉकलेट्स आर ओनली bitten, आप बस खा लो, है ना. For some chocolates you have to just keep it in your mouth for longer to get the taste. I mean, you can't look for an instant gratification. Yes. These days, because they want to try so many things and they want to know, so like for one partner they feel ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए. It's not possible. I have seen even couples ditching a partner based on this particular with this particular type of sex she is not comfortable. For example, it's blow job or roll. ये दे नहीं रही थी तो I switched. ये कर रही थी तो I took it. है ना. और she was not comfortable doing it for long, so जो I just maintain a distance. Or the girl even says the boy was not happy, he was not giving me time, he was into job, so I switched. Rather than switching. And the next factor is fear. Okay. ठीक है. So the fear of sex is much. There was a time the sex fear has not been spoken about. ठीक है. आज भी आपको नहीं पता होगा कि लड़कों को भी सेक्स का डर है और लड़कियों को भी सेक्स का डर है. अब डर का मतलब कंसीविंग नहीं है. ठीक है. डर का मतलब पेन है. डर का मतलब अनकम्फर्टेबलनेस है. डर का मतलब दे डोंट इवन नो देयर बॉडीज. ठीक है. डर का मतलब कि शायद परफॉर्मेंस एंजाइटी है. तो अब डर बढ़ता जा रहा है. डर ऑफ करूं या नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं, कर लिया तो सेफ है या नहीं है. ओके. और माई बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकलिंग, आई हैव टू सेटल फर्स्ट. तो जब ये 30-35 में कर रहे होते हैं, देयर ऑर्गन्स आर नॉट सपोर्टिव इनफ टू डू इट इन अ पैशनेट मैनर. ठीक है. फिर क्या होता है, हो तो रहा है बट
फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मज़ा ही नहीं आ रहा, फिर उनको डर लगता है फटाफट कर लें, बच्चा नहीं हुआ तो टाइम से, तो सेक्स बिकेम मोर लाइक अ जॉब थिंग. राइट. ओके, प्लेजर वाला वो एंजॉय कर रहे जो 90s-20s में है, लेकिन उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये ठीक तो है लेकिन ये ओवरडू भी नहीं करना. The right age to enjoy masturbation, the right age to have a good sex is 29 onwards. Let's say 20, 27, 29. जब हम बोलते हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ultimately you have that drives and everything. But हो क्या रहा है, 15, 16, 17 वाले enjoy करने लग रहे हैं, फिर डॉक्टर्स पैसे ले रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे भीड़ रुक ही नहीं रही. सो जिनको चाहिए वो अब कह रहे हैं हमारी तो होली भाई. 30s, 35 में they said we are not getting the feel, we are not getting the urge. Then the next drive comes in 40, 45s, 50s, when the female partner feels into a menopausal phase, she don't like it, kids become mature enough to settle them. So वो एक एज सब स्ट्राइक करता है, तब आपके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो एक वो ड्राइव है वो वहाँ पे फिर दब जाती है, और फिर आप 70-75 में तो सोच ही नहीं सकते हो क्योंकि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है. Ma'am, I want to talk about dating apps. Are they good or bad? Because they definitely right now are serving the purpose of instant gratification. See, who doesn't want instant gratification? We all like it. Okay, so if somebody messaged me, है ना, and on the second, third day he says, I really like you and everything. Even if मैं कितनी भी समझदार हूँ, मैं कितनी भी मैंने डिग्रीज कर रखी है, but that's something that attracts me. Okay, so आपकी समझदारी बहुत important. Dating apps are not bad. Bad होती तो इतनी बन नहीं रही होती. They're not bad. They have a purpose. They have an idea. And that is good because they are connecting people from all the horizons in one frame or under a same umbrella. Okay, they are good, they are connecting. But as soon as they jump their boundaries, that is bad. And वहाँ पे जब आप उसको use कर रहे होते हो, you have to be consciously aware कि मुझे क्या करना है. I know after being on there, it's very easy to find a people. It's very easy to be on someone's bed. It's very easy to talk about sex. It's very easy to get all those spicy talks at night and masturbate. It's easy. But you have to understand, is this something I'm going to get all my life? Is this the only thing that I want? Or if I'll get a stable partner in life, will I able to satisfy her with my drives increasing so much on this app? Okay. There is no way we can ban them or we shouldn't take them forward. अब तो पता नहीं जीवन साथी और ये सब भी डेटिंग एप्स हो गए हैं, right? You're not going to find it. So अब आज के टाइम पे तो ऑप्शंस इतने सारे आ गए हैं लोगों के पास. They have profiles everywhere. And I think it's not for the emotional people. It actually hits your psychology. Those people who have attachment issues, have the anxious personalities, please don't go to these apps. Or if you go, be strong enough. Because almost the people there or the personalities there are fake. You have to learn how you can detach yourself. Otherwise, it is harmful for you. Okay? Because अगर आप बहुत ज़्यादा emotionally बह जाओगे, it's a cause of a serious mental health issue. Be sure of what you are typing, whom you are talking to. Right. Ma'am, we understood the psychology of sex in extreme detail. Now, I want to touch base upon the spirituality aspect. Right? There are people who take the path of celibacy and claim themselves to be spiritual. Right. While there are people who say that, it can cause hindrance. Right? ये लोभ है, ये एक मृग तृष्णा है. Right? So I want to understand this whole psychology. I want to understand that if you can enlighten us on this aspect. अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हो तो आप महात्मा नहीं हो. Okay. The race is not about being Mahatma or being somebody who's connected to God. It's not a race. Okay. It's only a path that you have to keep on following. कोई ऐसे टच करना नहीं है वहाँ जाके. Okay. You have to be maintained on that. आज मैं किसी भी let's not mark religiousness into it. ठीक है. मैं किसी का भी नाम ले रही हूँ या मैं खुद से meditate कर रही हूँ. It's a way to being into spiritual life.
कुछ भी कर रही हूँ, ये मुझे सिर्फ एक इंस्टिंक्ट की तरह, सिर्फ ये नहीं करना है कि मैंने ले लिया और अब वो मुझे रोके जा रहा है. आई एम गेटिंग ऑल दिस बट आई एम जस्ट स्टेइंग अवे, आई एम जस्ट किलिंग माई सेल्फ. दिस इज़ नॉट द वे. ठीक है, आप गृहस्थ में भी रह के स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप रेगुलर ऑफिस जाके भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप गर्लफ्रेंड के साथ भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप लिव इन में भी स्पिरिचुअल हो सकते हो. स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन्स यू हैव टू कट ऑफ ऑल योर थिंग्स. Even in the books it is written it has to be in a boundary. कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. रथ पे बैठने को तो कोई बुक मना नहीं कर रही. तो इट्स अ वेरी फेमस साइकोलॉजी, में आपको समझाती हूँ. बहुत ऐसे लिखा है, हर बुक में मेंशन है, हमारे भगवत में भी ये मेंशन है कि आप जितने भी घोड़े, एक रथ है, ओके, सो इट्स लाइक अ चैरिट वेयर यू आर सिटिंग. जितने भी घोड़े हैं ना, वो आपकी इंद्रियां हैं. ठीक है, वो पूरी पांचों घोड़े आपकी इंद्रियां हैं. उसके बाद जो बंदा बैठा है, जो उसको चला रहा है, वो आपका माइंड है. ठीक है, वो चला रहा है. तो अगर आपकी इंद्रियां तेज भागने लगेंगी तो आपके साथी को उसे वापस खींचना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स कीप ऑन गोइंग. इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं रथ पे बैठूं ही नहीं, मैं तो चलाऊंगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाता है, ये तो ऐसे है. रॉन्ग. सी, you have to be on that chariot and you have to keep on moving in life. Okay, this is being, your life is being designed this way कि आप जन्म लोगे, you'll get married, you'll have kids, you'll have all sort of drives, but still God is watching who can drive this chariot very well and reach to me. यही तो जर्नी है. हम क्या कहते हैं जी, हम तो बैठते नहीं, हम तो करते नहीं, हम तो ज़मीन पे बैठ के हम ध्यान करेंगे. नो प्रॉब्लम, करो. दैट मेक्स योर जर्नी ईजी. अगर आप बैठते ही नहीं, आप आराम से पैदल चलते हो, आपकी जर्नी आसान है, क्योंकि घोड़े को तो खींचना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, वो तेज भी चले, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उसको वॉशरूम भी लेके जाना पड़ेगा. यहाँ कुछ नहीं करना, आप बैठे हो and just meditating, you're walking your own way. There is no hindrance. You can stop whenever you want, you can go whenever you want. But the person who is walking should not blame somebody who is on chariot. Okay. कल परसों की बात है, मैं खुद को ही बोल रही थी कि अगर मेरे बच्चे या मेरी शादी नहीं होती ना, तो मैं शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे से चला लेती. वाई? क्यों? क्योंकि आई फील जैसे आज पॉडकास्ट के लिए आई हैव टू ट्रैवल, कल आई हैव टू गो बैक बिकॉज इट्स माई किड्स एनुअल फंक्शन, सो आई हैव टू, आई कैन नॉट डिसाइडेड कि छोड़ना है ना. अब करने को तो मैं 6-6, 7-7 पॉडकास्ट एक दिन में कर सकती हूँ, बट आई नो आई हैव अ फैमिली. ओके, सो वो बाउंड्रीज मुझे बनानी है. पागलों की तरह मैं कर भी सकती हूँ, बट आई विल मिस माई चाइल्ड्स दोज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई ग्रोथ. उनके लिए तो फॉर माई ग्रोथ, बिकॉज इट्स मी, आई हैव अ रोल टू प्ले. Similarly, if you just keep on walking on the way to spirituality कि मैं तो ये हो जाऊंगा, बोलते हैं ना बड़े बड़े सन्यासी फिर पागल भी हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा उसे ले लेते हो. सबसे बड़ा विजेता वो है जो गृहस्थ में और इन सारी चीज़ों के रहते हुए भी उस स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करे. Okay, celibacy is very good. I respect people who do it. I still respect people who keeps on, like they go to caves and worship God and be inclined to that super soul. Very good. But I also do it. Okay, and I don't want to compete. I don't want to compete with them. They might be superior to what energies I have. But it doesn't mean that I'm less to them or I'm incompatible to have spirituality. ये भी तो गलत है ना भाई, मैं बनी ही नहीं हूँ. ये सेक्स के बारे में बात करती है तो इसको तो कहाँ भगवान जी मिल रहे होंगे. आई एम सो कनेक्टेड टू दैट सोल पावर, क्योंकि वो मेरे अंदर है ना, और मैं किसी का गलत नहीं कर रही. सो देयर आर सम मॉरल्स, देयर आर सम इंद्रियां ऑल्सो. तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ मत देखो ना, वो सारी चीज़ें भी देखो. सो हाँ, वो मृग तृष्णा है, वो कुछ पल का मोह है तो पल की बाद वापस भी तो आओ. उसको ब्लेम ही मत कर दो कि आया ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है. मैम, हाउ कैन सेक्स बी स्पिरिचुअल? And can it actually lead to the path of self-discovery? If you are sexually aware and mindful, you can even know where, what, and how your body is responding. Okay, you can be spiritually connected. Let's talk about the spirituality. What is solitude? The one who is happy alone. एक बंदा ऐसे मिला और वो कहता है मैं खुद से बहुत खुश हूँ, मैं अपने साथ बैठता हूँ तो मुझे मज़ा आता है ना.
मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मेरे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो मेरे लिए खेल है ना, सब मेरे आसपास हो रहा है, मेले में हो, सारी दुकानें लगी हैं, सब घूम रहे हैं, बट आई एम हैप्पी. ओके, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर ओन वर्ल्ड, देयर इज वर्ल्ड इनसाइड. हम सारे 5 तत्व हैं, ये सब भी 5 तत्वों से बना है और मेरे अंदर भी वो 5 तत्व हैं. मैंने वो 5 तत्व, ऑल द 5 एलिमेंट्स आर इनसाइड मी एंड आई एंजॉय द एलिमेंट्स इन मी. ओके, and similarly sex is a way to get connected to all those 5 elements. Okay, this is the biggest myth, again this is the biggest myth कि sex आप तभी enjoy कर सकते हो when you have a partner. ये भी गलत है. We have straight away question masturbation कि oh this is a sin, है ना, this is a sin, और फिर कर सारे रहे हैं. ठीक है, फीमेल्स भी कर रही हैं, जो मैरिड हैं वो भी कर रहे हैं, 70-75 वाले भी कर रहे हैं, करना पड़ेगा. सी इफ योर पार्टनर, इफ यू डोंट हैव अ पार्टनर, योर पार्टनर हैव पास्ड अवे, ओके, हमारे हिंदू मॉरल्स में दूसरी शादी भी एक क्वेश्चन है. ठीक है, पार्टनर कोई मेडिकल इशू है, एक एज के बाद तो फीमेल बोलते भाई मेरे को माफ़ कर, तू बाहर जा. ऐसे भी कुछ घर हैं, एक्चुअली घर हैं, तुम जिसने नहीं मानना मत मानो. ठीक है, हाँ, और ऐसे भी घर हैं जहाँ फीमेल ड्राइव्स हैं बट मेल सेज आई कैन नॉट. ठीक है, अब ऐसे में what is the way if somebody comes and say you कि I have a drive but my partner doesn't support me, तो हम क्या बोलेंगे, you are out of, you are a sinner. right. ये कोई तरीका थोड़ी ना है. अब ये बोले कि I'll have an affair और I'll go and have, वो भी गलत है, क्योंकि हमें लगेगा see you are, आपने तो यज्ञ किया ना अपने, you have all those 7 फेरा ले लिया आपने, अब तो आपको नहीं करना चाहिए. और ऐसे में if somebody is self pleasing them and they feel good, they feel active to do all the responsibilities they have to, but they're not harming the society. ये नाम भी ले रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, तो गलत क्या है? And it's a way to self-discover. And it's very important. All the kids, 11 year, 12 years. In our time, so 14, 15, but now it's 11 years onwards. So 11 year, if you found your child playing with their organs, not exactly masturbating, but playing with their organs or just, it's very open to ask and be prepared this will happen. और अगर आपको नहीं दिखा तो वो हो रहा है, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली हैं. इट इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू नो हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स. अभी भी कितनी फीमेल्स हैं उनको पता ही नहीं है कि what areas she want to be touched. Even male even don't know कि कहाँ पे मुझे टच करना एक्चुअली पसंद है, क्योंकि आपने खुद को ही नहीं छुआ. आपको सबसे ज़्यादा सेंसेशंस कहाँ पे होती हैं, सबसे अच्छा आपको, और इसके लिए मुझे वेट थोड़ा ना करना है कि मेरी शादी होगी फिर ऐसे होगा, नहीं, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस आप इतनी बढ़ा दोगे कि वो बेचारा आदमी परेशान हो जाएगा. कितनी एक्सपेक्टेशन मुझे समझ ही नहीं आ रहा. उसको एंजाइटी होने लगेगा, उसको रिलेशनशिप का बर्डन होने लगेगा. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. I still know there was a very famous statement said by one of my partner, one of my patient. He said, rather than having a girl जिसको मुझे बेड पे सब सिखाना पड़े, I want to have a girl who's trained. ठीक है, ताकि I'll enjoy. So वो फेस चले गए हुए, virginity was a question and everything. Rather than हम बेड पे चेस खेल रहे हो, I think it's better to play hide and seek on bed. So it's more pleasurable. तो मैम सेल्फ डिस्कवरी की बात की, अब यहीं से मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ सेक्सुअल मेडिटेशन? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. सी, जब भी आप खाना है ना, इसको ऐसे समझिए, बहुत ही ऐसे थाली लगाई है आपने मेरे सामने, ठीक है, और मैं कॉल पे थी, मैं किसी से बात कर रही थी एंड एवरीथिंग, एंड आई स्टार्टेड ईटिंग. आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड, ओके, ठीक है, मैंने देखा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उस पर कोई अपने सेंसेस को बिल्कुल डाइवर्ट नहीं किया. बस आई स्टार्टेड ईटिंग, आई जस्ट फिनिश्ड ऑफ एंड आई वेंट. इट विल नॉट टेस्ट मी, it will not give me the exact amount of calories that I wanted. It will not give me even energies. Okay? Because I'm not mindful. I'm not mindful. I'm not being involved into that diet. Okay? लेकिन अब आपने मेरे साथ प्लेट रखी है, वो सामने पड़ी है, ठीक है, और मैंने बहुत डीप ब्रीथ लिए, मैंने खाने को थोड़ी देर विजुअलाइज किया, मैंने देखा कि क्या अच्छा बना है ना, एंड आई थैंक गॉड. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट सेड थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द फूड, और थैंक यू मम्मा यू हैव क्रिएटेड, और वट एवर, एंड देन यू ईट इट. दिस इज़ ब्यूटिफुल. और ये वाला खाना खा के, दैट्स वाई जो लोग कॉर्पोरेट से निकल के
रिट्रीट्स वगैरह, आजकल रिट्रीट्स आर सो हेफ्टी और हर जगह चल रहे हैं. आप रिट्रीट जाओ या लंगर सत्संग नहीं जाते है ना, वहाँ पे वो खाना डाल देते हैं, उसके बाद वो थोड़ी देर आपसे मंत्र बुलवाते रहते हैं, है ना. या तो आप गुरुद्वारे जाओ तो वो सतनाम वाहिगुरु गाते रहते हैं, आप किसी और रिट्रीट या कहीं और आश्रम में जाओ थोड़ी देर वो मंत्रा बुलवाते हैं. टिल देन दे कीप ऑन पोरिंग ऑल द थिंग्स, है ना. कभी दाल आ रहा है कभी कुछ, तो वो टिल द टाइम यू जस्ट visualizing your food, you're increasing all the desires, you're deep breathing, you're enchanting all those mantras again and again, and then you are eating it. Similarly, क्योंकि ये भी खाना भी सेक्स है, similarly psychology says, तो जब आप करने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले रुको, just breathe, just keep all your chakras and energy aligned. This is a form of meditation, okay? Then hold your partner's hand in case you want to, or just keep your hand on their bodies and just look in each other's eyes, just thank them कि तुम हो तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, and slowly you went into it. This is called a sexual meditation. If you feel like doing it before sex, absolutely win-win. Okay? If you don't want to keep it, वैसे तो हमेशा पार्टनर के साथ होना चाहिए, नहीं कर सकते, do it in the morning. Okay, do it in the morning. And there is no sexual energy से डरना क्यों है कि ये आ जाएगी तो मेरा सारा दिन सेक्स पे ध्यान रहेगा, क्योंकि आप डर रहे हो. आप उसी को अपने वश में कर लो ना. Once you meditate, you keep all your sexual energy in your charge and hand, and it will not get diverted here. हम चलते रहेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे, हम कुछ भी करेंगे, फिर कुछ भी कोई भी हमें बहुत सेंशुअल लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन वेयरिंग वेरी such sort of clothes, of a man showing all his abs and everything, तो आप डाइवर्ट हो गए क्योंकि आपने एनर्जी चैनलाइज ही नहीं कर रखी ना. तो ये सबके साथ है. एंड इट्स नॉट अबाउट कि सेक्शुअल मेडिटेशंस मना है या नहीं करना चाहिए, और ये कैसी अब हमारे बाद लोग लिखने वाले व्हाट इज दिस थिंग, लोगों को पता नहीं है. सो sexual meditation is a very beautiful concept. All those people facing any sort of sexual issues, be it pain, be it fear, be it anxiety, be it any thought of sex thoughts, nightfall issues, सबके लिए sex meditation is a awesome concept and they should practice it. Ma'am, there are scandals, diplomats getting honey trapped, right? So from here, I want to understand the phenomena that Freud gave, that sex is everyone's strength and weakness. And is it true that the whole world revolves around libido? अब इसमें से 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. पहले से शुरू करते हैं. दिस हनी ट्रैप्ड वाला थिंग और सिखाया जाता है क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पावर में होते हो या बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आपको एफिलिएशंस मिल रहे होते हैं, पीपल फूल लेकर आ रहे हैं और काम निकलवा दो सर. ऐसे में क्या होता है, यू आर सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी, ऑल द हुक्स आर देयर, है ना. कई लोग मुंह पे मीठे हैं लेकिन है नहीं, सो दे आर सर्कुलेटिंग नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू. आप इतना हाई अनस्टेबल पोजिशन में होते हो कि आपको कुछ भी लुभावना मिलता है, यू कैन नॉट कीप एट अ बे. You cannot resist. Yes. Why? Because you are not in the positions. जब आप स्टेबल हो, घर पे सब ठीक है, आपको तब मैं बोलूँ कि मिठाई खाओगे, नहीं, है ना. आप डाइटिंग पे, आपको पता है नहीं खाऊंगा, है ना, लेकिन मैं ट्रैवल करके आई हूँ, कुछ और खाने को नहीं मिल रहा है ना, और मैं बोलूँ मिठाई खाओगे तो आप खा लोगे. हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ना, कि चलो कुछ पता नहीं कब मिलेगा, है ना. सिमिलरली जब आप हाई पोजीशन पे हो, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू एंड योर पार्टनर इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व फॉर लॉन्ग बिकॉज यू आर बिजी इन दिस पॉलिटिकल करियर, डिप्लोमेटिक करियर एंड एवरीथिंग, एंड एवरीबडी इज लविंग यू, राइट. एंड सिमिलरली somebody says or they comes and they give you line, ultimately you couldn't resist because you are not in the right position to deny. It's not a person fault. मैं गलत नहीं हूँ, ये जो मेरे अंदर एनर्जीज थी उसने शायद गलत करा दिया. दिस महीप, मिसेस महीप, उन्होंने संजय को माफ़ कर दिया था फॉर द सेकेंड मैरिज, राइट. वाई? बिकॉज हमें रीजंस नहीं पता, बट वी शुडंट जज इफ अ वाइफ सेज कि अफेयर के बाद शी एक्सेप्ट्स हर पार्टनर बैक. देयर इज़ नो रॉन्ग, क्योंकि जब आप अपनी करियर के बहुत हाई फेज पर होते हो तो ये सब बहुत कॉमन है. देयर आर मैनी बॉलीवुड वाइफ्स हु हैज एक्सेप्टेड that their partners were in face of this honey trapping when they were high on their careers, even females too. And you can find lots of statements there. Kyun? Because it's not about the person, it's about the phase you are in.
तो हो जाता है. Second statement, when the Freud says that everything is sex, right? एक तो फ्रूइड भाई साहब जब हम पढ़ते भी थे ना, I still remember कॉलेज बोलते थे फ्रूइड के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्स ड्राइव थे, तो was been blamed as a sex person, right? But एक्चुअली कहाँ से शुरू करें? साइकोलॉजी बन ही वहाँ से रही है, कोई और तरीका ही नहीं है. हाँ, आप आंखें बंद करके फ्रूइड को ब्लेम ज़रूर कर सकते हो, बट एवरीथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर. मैम उस टाइम पे सोसाइटी का भी वही कल्चर था ना, विक्टोरियन एरा में अगर आप जाके देखोगे, हाँ, प्रोस्टिट्यूशन वाज एट इट्स पीक एज वेल, राइट. ठीक है, और वो देख रहा था सामने सामने कि पूरे उस टाइम काल में क्या चल रहा है. एग्जैक्टली, एंड एवरीथिंग इज सराउंड. सी, लिबिडो भी बेचारा ब्लेम्ड है कि सेक्स लिबिडो ही होता है. वाई? लिबिडो इज फॉर एवरीथिंग. लिबिडो का रिलेशन सिर्फ सेक्स से नहीं है. इट कैन बी फूड लिबिडो, इट कैन बी एनी ऑफ द सेंसेस लिबिडो. So everything is surrounded by it. If you are sexually full, you can perform like anything in all the sectors of your life. आपके पास पैसा अच्छा है, पहली गलत चीज़ जो आप करोगे वो शायद सेक्स हो सकता है, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास सेक्स अच्छा नहीं है तो पैसा हो ना तो भी आप 10 बार सोचोगे कि जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि sex is some of the factor that makes you feel grounded, I guess. Ma'am, fantasy is something that also he talked about that actually gives rise to sexual excitement. But वहीं दूसरी ओर मैं देखता हूँ, और इंडिया में अब के टाइम पे एक पॉर्न का चलन बहुत ज़्यादा हो गया. So how do you see porn? What is your take on porn? See, porn, पहले तो माई टेक से पहले बात करेंगे. आई सी पॉन, यू सी पॉन, एवरीबडी सीज पॉन. ओके, ये जो बोलता है मैं नहीं देखता, तो भाई आप छुपा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है. सो पॉन इज सो ईजी टू एक्सेस, सो फ्लुएंट, and so open to discuss about. Everybody talks about it, okay? People still feel shame to talk about someone's affair or somebody, but they feel open to talk about porn, ठीक है, कि ऐसे ऐसे वीडियो देखी भाई, ऐसे ऐसे, है ना. MMS are so common these days, the deep fakes are so common these days, circulating such videos are so common, है ना. लोग डरते नहीं है सर्कुलेट करना, वो खुल के कि भाई इसकी तो निकल आई वीडियो, ठीक है. So watching porn is not, let's say, it's not something to be bad. Once you see it, you find an overview of how to do it, how this happens. Your hormones start flourishing. Okay, you understand your body. नहीं तो कहाँ से पता चल रहा है? If you really want to eradicate porn culture, start sex educate. Right. अगर आप चाहते हो ये चला जाए, फिर आप खुद से दे दो, ठीक है. आप एक बार पॉर्न देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, आप सेम कैटेगरी बार बार नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो रश ही नहीं आ रहा है. मैम एक वो ड्राइव हो जाती है ना कि आई वांट बेटर बेटर बेटर, तो आपका वो रश भी उस हिसाब से आएगा. एग्जैक्टली. और दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ वीडियोज, लेट्स से 1 देख ली, 2 देख ली, 3 देख ली, दे हेट द इंटरकोर्स. क्यों? क्योंकि हर वीडियो स्टार्ट होते इट कम्स टू कम आउट, इन एंड आउट, एंड दे डोंट लाइक इट. They want more of a story-based porn, okay? They want to know how husband approaches. They start opening clothes slowly, and everybody likes it, ठीक है. कोई, मुझे नहीं पता कि कोई skip करके सीधा intercourse पे जाता है. Nobody likes it because they want emotions. High rushes are okay. Cigarette ऐसे पीना does it give you happiness? But बंदी छोड़ जाओ और cigarette पियो, मज़ा ही अलग होता है. Because there should be an emotion to pleasure. ठीक है. तो अगर इमोशन नहीं है ना, और आप ऐसे ही पी रहे हो, तो या तो वो बहुत गंदी लत लग गई है, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा. सो एन इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉर्न. ऐसे पॉर्न आर फाइन, बट आप उसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, आप उसे हद से ज़्यादा नहीं देखोगे विदाउट एनी ड्राइव. राइट. ठीक है. अगर आपको ये दोनों हो रहा है तो आप समझ लो यू नीड टू सी अ डॉक्टर. मैम देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉर्न, जैसे BDSM हो गया, फैंटेसी हो गया, पता नहीं क्या क्या है, हेंटाई एंड ऑल. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गो ऑन टू deteriorate द क्रिएटिविटी एंड द विजुअलाइजेशन पावर ऑफ द ब्रेन. Yes, see, another very important question.
when you start watching all those categories and you fantasize about it, first thing you lose is your connection to awareness. Okay, you keep such sort of expectations with your partner, and I'm sure this is not going to fulfill. Okay, I have many patients who come and says, "Ma'am, मेरे को ना threesome करना है, मेरी wife को मना लो," and they talk about it so confidently कि मन जाएगा. समझ रहे हो? इतना कॉन्फिडेंस है कि वॉयरिज्म या ककोल्डिंग या ये सब कन्विंस हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इनको वहाँ से वो मॉरल्स वाली लाइन तो कब की हट गई. ठीक है, अब अगर वाइफ मना भी कर रही है या कुछ भी कर रही है तो दे फील क्या बकवास है यार. ठीक है, क्योंकि आपने वो एग्जैक्टली उसे आपको समझ ही नहीं आ रहा. दिस इज ऑल फॉगीनेस. यू डोंट इवन पेनिट्रेट देयर एंड सी व्हाट इज द रियलिटी. ठीक है, एंड कैटेगरीज तो बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं. I watched my first porn. I'm revealing it on social media, but I watched my first porn in 2016. Okay, when we were in college. ठीक है, कॉलेज भी स्टडीज़ वाला. और तब ना ऐसे ऐसे सीधा वीडियोस नहीं देख सकते थे, है ना. मतलब दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी. इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था. अगर आप यूट्यूब पे ज़रा सा वीडियो देख लो, पैक खत्म हो जाता था, क्योंकि वो डाउनलोड होने में यूट्यूब पे टाइम लगता. अब तो इट्स सो कॉमन. प्लस यू कैन नॉट इवन वॉच द फुल पॉर्न लाइक द वे वी डू इट नाउ. सो देयर आर सर्टन क्लिप्स दैट नीड्स टू बी डाउनलोडेड. तो अब जब वो डाउनलोड करोगे तो हो सकता है उसमें कोई डिफरेंट एक्ट चल रहा हो. सो डिफरेंट एक्ट गोइंग ऑन इन द अदर क्लिप देन अनदर क्लिप. तो वो डाउनलोड करते करते आपकी जेब ढीली हो जाती है. अगर आप पूरा पॉर्न देखना, लड़कों का मुझे पता नहीं, मैं लड़कियों के साथ तो पूरा ऐसे करके. तो जब आप पहला देखते हो, दूसरा देखते हो, देयर इज सो मच पॉज फॉर द पर्सन स्टार्ट हेटिंग कि रहने देते हैं, नहीं देखते हैं. तो ऐसे तब उस समय पे पीपिंग होता था कि यू पीप इन समबडीज विंडो. और एक मूवी भी आई थी, टेलीस्कोप से अ बॉय वॉचेस फ्रॉम वन फ्लैट टू एन अनदर. I remember one of the movies. उर्मिला मातोंडकर. हाँ, यस, एक उर्मिला मातोंडकर की भी मूवी थी. आई हैव सीन दैट बॉय पीप्स द सेक्सुअल पूरा वाला थिंग. ओके, सो तब पीपिंग होता था और हेयरिंग होता था. तो आपकी ये वाले विजुअल्स बहुत एक्टिव थे. ठीक है, वैसे भी ऑडियो विजुअल्स आर एक्टिव देन अदर सॉर्ट ऑफ योर सेंसेस. तो अब क्या है, वो इतना ईजिली अवेलेबल है दैट यू लॉस्ट दिस पॉज. प्लस वो एक के बाद एक आपको नीचे ही दूसरा मिल जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा. फिर क्या है, आप इतनी फैंटेसीज को एक्सप्लोर कर लेते हो कि अब आपको खुद फील आने लगता है. देयर आर पीपल हु आर बॉर्न into different sexualities, okay? But when you keep on watching such sort of content, you keep questioning yourself, I even like it. है ना, मुझे ऐसे तो नहीं हो जा रहा है, मुझे ऐसा तो फील नहीं आ रहा है, और maybe I'm like that. ओके, सो वो हो क्यों रहा है? क्योंकि आप इतना फैंटेसीज को एक्सप्लोर कर रहे हो कि आप खुद को भूल रहे हो. आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत रेस कर रहे हो पार्टनर के साथ. आप एंजाइटी डेवलप करने लगो कि आप खुद पे भी तो प्रेशर लोगे. देयर आर सर्टेन पीपल हु वांट देयर पार्टनर्स टू डू इट. कहीं वो लगता है मुझे करना पड़ेगा, बस तो नहीं हो पाएगा इतना लंबा, इतनी देर तक ये वाला पोजीशन. तो दे कीप इट ऑन देयर देमसेल्व्स अ लॉट. सो porn is right in terms of education at some extent. Okay, but if you just make it your own world, and if you keep on checking it out, or you keep on finding what's new has been there updated, definitely you are turning into a psychic person. It's not recommended. And that is a long form implication, I would say, कि मतलब एक long term impact हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. If I'll talk about OCD, sexual OCD itself is a huge market in terms of business and problems. तो वहाँ से ही start होता है. There are certain patients who have religious sexual OCD. When they even see the goddess pictures on the wall, है ना, घर पे मूर्ति है, they keep on visualizing that. Right. And then they blame कि मेरे को ना भगवान की पिक्चर देख के भी वैसा थॉट आता है, डॉक्टर मैं तो बस अब क्या होगा मेरा, है ना, अपनी मदर को देख के भी आ रहा है, उसको they don't want it. बट वो इतना ज़्यादा हो गया है, एंड देन दिस पास ऑन टू जनरेशंस. मैम, in fact, I remember in one of the series I watched the mannequin को देख के भी हो जाता है. बिल्कुल है. There are fantasies related to the type of clothes. There are people who have gloves fantasies. They like female. हम देखते हैं ना ऐसे बाइक पे the female wearing gloves and everything, and we feel it's normal. But imagine a man who's
getting fetish based on how she's wearing the gloves. What's the weirdest form of fantasy that you have ever come across? But Sagar, when I started this profession, it was way back in 2011 when I have completed my masters. India में कोई भी ना standard course नहीं है, हिंदी में, English में okay. तो when I started working with a psychiatrist, तो ये वाला profession है. So when I found it people with the different fetishes, मुझे लगता है oh my god ये भी है, मतलब क्योंकि एक कोई बुक तो नहीं है ना पूरा पढ़ लो एक साथ, ओके तो जब आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं आप सोचते हो ओ माय गॉड दिस इज हैपनिंग. वियर्डेस्ट क्या है? स्मेलिंग द फार्ट फेटिश, ओके, और आई हैव इवन सी हु एंजॉयज ईटिंग poop. Yeah, and actually this is a fantasy. Or drinking urine, or oh, gloves and hairs are something, it's common. See, अब जानते हैं. I think putting a ball in your mouth and making your, maybe just making your partner go anywhere. So हो सकता है ये सब, but all this fetishes exists. The more you go into it, the more you realize that it can be the second person sitting next to you have this fetish. है ना, वाइफ को पता नहीं है, उसे लगता है कि, और इवन हस्बैंड को, लेट्स मेक इट जेंडर न्यूट्रल, बट आपके पार्टनर को पता ही नहीं है कि मेरे साथ कर क्यों नहीं रहा. वो ये सोचते हैं यार 5 साल हो गए, ही डजंट इवन फील लाइक हैविंग, इसका बाहर भी कहीं नहीं है. उसे ये नहीं पता इसको फेटिश है और उसको तो इरेक्शन आएगा ही नहीं तेरे साथ भी. ठीक है, दे गेट इनटू डाइवोर्स, दे स्टिल हैव दिस क्वेश्चन कि हो क्यों नहीं रहा. होगा क्यों नहीं? क्योंकि ही हैज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फेटिश, ही इज नॉट इवन कंफर्टेबल शेयरिंग विद समवन. तो उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है. Ma'am, do you think that porn is actually giving a rise to a lot of loneliness as well? Definitely. Loneliness, emptiness, and this loss of clarity in life. And lack of motivation as well to some extent. Yes, and maybe ये बोल सकते हैं the lack of feeling in love. Let's say people don't want to have love now. Okay, all those who find the pleasure in masturbation or watching porn and something, एक समय बाद उनको क्या लगता है कि शादी is like a burden itself. I'm happy with myself. जहाँ हम सेल्फ डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, फिर उसका एक एक्सट्रीम रूप ये भी है. ठीक है, होता क्या है जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ऑल दीज थिंग्स अट्रैक्ट अस. ठीक है, हम बहुत खुश हैं हमने सिगरेट पी ली, हम बहुत खुश हैं हमने सेक्स कर लिया, हम बहुत खुश हैं वी पेड एंड वी हैड दिस सेक्स, ओके, हम और मास्टरबेट, और वी आर सो सैड, वी आर सो एंशियस, समबडी हैज़ ब्लेम्ड अस फॉर एवरीथिंग, और बहुत गुस्से में हो, है ना. एक रील भी बहुत वायरल हुआ था ना, डिप्रेशन, सेक्स एंड एवरीथिंग, देयर इज अ पर्सन डांसिंग एट द बैक एंड से, है ना, डू मास्टरबेट, ओके, आई विल हेल्प यू. तो जब आप ये सब बहुत ज़्यादा करने लगते हो, यू फाइंड अ वे कि ये करना है और इसके बाद रिलैक्स होता है, देन यू tend not to talk to people, then you develop a guilt factor inside you. तो आप लड़कियों से किसी से बात करने से आपकी हिम्मत ही नहीं होती. Similarly with girls, they feel they are not compatible enough to have relationship because they masturbate. तो ultimately you get into a loop of loneliness. You don't feel fit in. तो आपको लगता है इनसे कैसे बात इनको कैसे अप्रोच करूँगा. दे ऑल आर मूविंग इन देयर लाइव्स, दे डोंट गिव मी टाइम फॉर ऑल दैट. तो जितना आप ज़्यादा पॉर्न देखते हो, पहले तो आप खुद की बॉडी को लेके इतने क्वेश्चनेबल हो जाते हो कि वाओ दे आर लुकिंग सो गुड एंड एवरीथिंग, है ना. फिर आप सोचते हो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा. एक्सपेक्टेशन लोड, ठीक है, इन्फीरियरिटी, एक्सपेक्टेशन लोड, गिल्ट. In some cases and in some extreme cases, BDD भी देखा गया है. बिल्कुल है, ठीक है. सो यू गेट इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ psychological issues. That's why mental health and sexual health is highly interrelated. Yeah. तो आप हर चीज़ में चले जाओगे, even you get this multiple personality वाला trait, है ना, borderlines and everything. Why? Because you even don't know when I have to come back. आप एकदम से स्विच कर रहे हो अपनी पर्सनालिटीज और आपको पता नहीं है कि यहाँ के बाद मैं डिवास्टेटिंग हो सकता हूँ, यहाँ के बाद मैं हार्म कर सकता हूँ. इफ़ यू हैव सीन लॉट्स ऑफ साइकिक थ्रिलर मूवीज, है ना, at certain time the criminal is very sweet, है ना, he's very sweet with his girlfriend, with talking to people and everything,
एंड सिमिलरली दैट रेड हो जाती है मूवी में आई ना, और एकदम से अर्ज आता है एंड स्टार्टेड किलिंग पीपल, है ना, ही स्टार्टेड रेपिंग पीपल. वो क्यों है? क्योंकि ही फॉरगॉट दैट बाउंड्री ऑफ कमिंग बैक. ठीक है, अब इसके पीछे ट्रॉमाज है, सेक्सुअल ट्रॉमाज हो सकते हैं. ठीक है, इसके पीछे सेक्सुअल नॉन अवेलेबिलिटी हो सकती है, या अर्ली इन द लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एग्रेसिवनेस हो सकती है. Childhood trauma can. Childhood trauma, sexual traumas, they are interrelated. Trauma, let's talk about trauma. So let's take an example. There was a person who turned into a criminal. I'm talking about my own case. I have seen this case. Okay, so अगर आप jails में जा रहे हो, those who are criminal psychologists and they go to jails for their cases, judicial criminal psychologist कहते हैं इन्हें. जब आप इनके पास जाते हो, ये देखो, तो वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स आपको मिल जाएंगे, उन सब के पीछे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके सारे अर्जेस हिले हुए होते हैं. जो एक बार एक्सट्रीम अपनी पर्सनालिटी का देख लेता है, वो वहाँ भी चला जाता है. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अर्जेस जैसी बहुत एक्सट्रीम में आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या है, आप वो वाली पर्सनालिटी टर्न करते हो जो आपको नहीं चाहिए. प्लस जो ट्रॉमाज हैं, फॉर एग्जाम्पल, early in the marriage you have seen your father beating your mother for sexual drives. This man might develop hatred from sex, or he becomes excessively aggressive to get sex in life. Extremes में चला जाए. ठीक है, जिससे उसकी वाइफ ने बार बार ये बोला, तुझसे नहीं हो रहा, तू नहीं कर पा रहा, मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ. It's all is in mind. उसका डाइवोर्स हो गया. The next partner, he might kill the ladies who even questions, or he becomes excessively introvert and just provides sex to the females. Right. Ma'am, this is one aspect that you covered, but now I want to talk about those people who undergo marital dysfunctionality, or in their relationship or in their marriage, marital rape भी होता है. So I want to talk about those traumas as well, कि जो alive रह जाते हैं, those who don't kill themselves, who live with this trauma. This is something that I want to talk. This is really suffocating. See, surviving in a marriage where you are at any level of intimacy, you're not being valued, respected. This sort of relationship is really suffocating. मतलब बहुत मुश्किल है. ठीक है, especially male or a female who go through marital rapes is something that they cannot love their body ever. दूसरों की तो छोड़ो, वो खुद की भी नहीं सर्वाइव कर सकते. So when somebody says them hello, they feel anxious. Or yeah, so even if they somebody hugs them, they don't like it. They feel hatred from inside. So any sort of traumas that been given to your partner in terms of sex, it can be orals too, right? तू बांझ है, और तू ठंडी है, whatever, okay? या तेरा size, whatever लेकर, whatever, all those even verbal traumas, okay, are really, really penetrative in your souls. They need to be cleared out. अगर ये नहीं होंगे तो वो बहुत impact करता है. It can make you feel like you don't exist into world, की ज़रूरत ही नहीं है, और मे बी यू डोंट डिज़र्व प्लेजर्स. इन लोगों के लिए नेक्स्ट मैरिज चलाना, इवन आफ्टर डाइवोर्स एंड एवरीथिंग, इन लोगों के लिए दोबारा से उस फ्रेम में आना बहुत मुश्किल होता. ट्रस्ट ही नहीं होता. बिल्कुल नहीं होता. ऑल दोज आई हैव काउंसल्ड girls after their sexual abuses. I have been awarded by Sheila Dikshit for this. So when I used to counsel the girls who have went through rapes or any sort of sexual abuse, बहुत आसान है बोलना कि भूल जाओ, बहुत मुश्किल है दोबारा से अवेलेबल होना. एक बार भूल के आप लाइफ तो चला सकते हो कि आप ऑफिस चले गए, आप यहाँ चले गए, अपने काम करने लग गए, आप भूल गए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, बट वही फीलिंग दोबारा से लाना और उसे इंजॉयबल फ्रेम में लाना बहुत मुश्किल है. इट नीड्स रिग्रेस थेरेपीज टू एक्सेप्ट that love which has been your worst nightmare ever. तो वो तो बहुत सोल अटैक.
and I have even read that your past abuses, if it's been incarnated in form of sex or something, it's been passed on to the other lives too. Right. Ma'am, sex in a relationship is very important. Now, I want to understand what is a healthy relationship. Healthy relationship is a very simple definition, is a relationship where you feel I am me. I'm not being killed by the desires, expectations and needs of other partner. Okay. I've been accepted the way I am. I am doing things out of my own will. Okay. I'm changing myself because I feel you like it. Okay. Or I'm dressing myself the way you like it. Or I'm cooking something the way my partner likes it. But if I'm being forced to do that just to be liked by you, this relationship is the high on toxicity. Okay. हाँ, again, a remark है ना, terms and conditions, वो ये है, या terms and condition ये है कि अगर 4 चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है, उसमें से 3 चीज़ें आप अपनी विश से कर रहे हो, एक ऐसी है जो करनी पड़ रही है, तो चला लो, ठीक है, 50-50 भी है तो चला लो, नहीं तो फिर हैप्पी रिलेशनशिप तो फिर शिव पार्वती का भी नहीं था. ओके, सो चला लो. कॉम्प्रोमाइजेस बोलते हैं ना, शादी में क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं, एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी, बस आपको वर्ड बदलना है. कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. He is also adjusting, you are also adjusting, families on both the sides also adjusting, siblings on both the sides are also adjusting, maids on both the sides are also adjusting. So everybody is, don't feel कि मेरी तो शादी हो गई, मैं तो अब adjust करती रहेगी. This is a wrong psychology. A healthy relationship with anybody, not the love relationship, anybody, a healthy, even the boss and the employee, only exists where the employee understand that 50% of my growth is in my hand and 50% it is in the hand of my boss. Right. There might be days when I'm 80% happy, boss नहीं आया तो मैं खुश हूँ. फिर जॉब को गाली मत दो, क्योंकि 4 दिन वो नहीं था तो तुम खुश भी तो थे. 4 दिन अगर उसने डांट दिया और उसने अपने हिसाब से काम मांग लिया तो तहस नहस नहीं कर देना कि मैं खुश नहीं हूँ. Strike a balance and keep on checking your relationship. After every month, just sit with your partner and just talk. Is everything going fine? Anything I need to work on? क्योंकि जब आप खुद से करने लगते हो तो फिर आप रुकते नहीं, फिर आप अपनी मर्जी, आप उसने आपको 2 बार किटी पे जाने दिया, तीसरी बार नहीं जाने दिया, फिर आप बढ़ते चले जाते हो. Freedom is good. It's very important. Your partner should give you freedom. I'm not saying should, but there might be day he say no. है ना, कि दूर नहीं आने. You shouldn't feel and blame your partner. You should accept it. So बहुत easy है define करना, but adjustments साथ आती हैं. It's a terms and condition. मैम, आज के टाइम पे इंडिया में एंड वर्ल्ड क्रॉस काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो रहा है ओपन मैरिजेस का भी. व्हाट्स योर टेक ऑन ओपन मैरिजेस एंड फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू समथिंग कि मैं ये समझना चाहूँगा. See, open marriages are not harming people, first of all. Okay. Open marriages are not something that I should comment good or bad, but I feel if a couple feels that it's an experimentation phase and they can be detached without harming each other, there is no harm. ठीक है, rather than किसी को झांसा देना या टालोफाइन करना कि we'll get married and everything, and that you are like 35-38 तक आप सिर्फ टालोफाई करते जा रहे हो. आई थिंक इट्स बेटर टू बी एन ओपन मैरिज देन. ठीक है, आजकल तो हर चीज़ इतना ओपन रिलेशनशिप हो गया है कि यू कैन एग्जिट एनी टाइम. एग्जिट एनी टाइम आई अप्रिशिएट, बट आर यू केपेबल इनफ टू एग्जिट एनी टाइम? आप एग्जिट बोल के तो चले जाते हो, लेकिन आपके अगले 6 महीने उस एग्जिस्ट को एक्सेप्ट करने में लग जाता है. किसी को बोलते तो ब्रेकअप, बट अब फिर आप थेरेपीज ले रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, आपकी जॉब इम्पैक्ट हो रही है. सो आई थिंक ओपन रिलेशनशिप्स आर ओके, बट दैट ऑल्सो कम विद एन ओपन इमोशनल ट्रॉमा. ट्रू. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड सेक्स मुश्किल है, बट
long distance relationship में the only mode to enjoy a pleasurable sex is all those night messages. I think उनका favorite app फिर Snapchat हो जाता है ना, क्योंकि बेचारों के messages delete हो जाते हैं, है ना, तो they keep it safe and they like it. It's like one time seeing a post and everything. Instagrams and this is little थोड़ा सा है ना डाटा स्टोर होते हैं, तो लगता है कि सेफ नहीं है. बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सेक्शुअल प्लेजर कॉम्प्रोमाइज होते हैं. देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डाइवर्टेड, देयर आर मोर चांसेस ऑफ बीइंग चीटिंग और बीइंग विद समबडी एल्स. हो सकता है, बट the only thing you should check before you are entering into a sexual or committed long-term relationship is that the partner who's away from you must have a goal in his mind. अगर वो सिर्फ गोल लेके जाए, हम शादी से पहले लॉन्ग टर्म क्यों, लॉन्ग डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? कितने रिलेशनशिप शादी के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस है ना. कई हस्बैंड सैटरडे संडेज ही वापस आ रहे हैं, 6 महीने. ऑल आर सोल्जर्स, ऑल द ट्रक ड्राइवर्स, एवरीबडी, दोज हु आर इनटू लॉन्ग टर्म कमिट to the country, to the society, they are working. So long distance relationship के लिए communication is the only source that connects them. Okay, and thanks to all this internet technology, to you guys also, it's like somewhere connected. Okay, गलत सही नहीं है, but this constant touch is very important. बातचीत बहुत ज़रूरी है. और धोखा तो देखो आपके आंखों के आगे बैठा वाला आदमी लगा दे तो दूर तो फिर क्या डिग्री है. मैम पहले तो खत लिखे जाते थे. हाँ, और उस पर भी ट्रस्ट होता था कि सही जना ही लिख के भेज रहा होगा, है ना. अब एटलीस्ट आपको ये तो पता है उसने देख लिया वो क्या कर रहा है. पता है क्या है, आई पर्सनली फील इट्स बीन 12 years 13 years to this sexual intimacy and everything. I feel if you want to feel the pleasure of sex, you can even get it by just reading somebody's thoughts. You get it even from a flower if somebody gifted you. ये सब अंदर से आ रहा है, तुमने फील करना है. ब्लेम क्यों करना है कि तू मुझे करा ये फील? ये साइकोलॉजी गलत है. प्रैक्टिकल नॉलेज है, बुक्स में नहीं लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तू मुझे दे सेक्स. ये गलत है. आई कैन हैव इट. और इस प्रोसेस में व्हेन यू आर selfishlessly working on your pleasure, your needs, you'll able to give better to your partner. मैम मैं कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा और उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे कि शिलाजीत हो गया या वायग्रा हो गया. तो ये कैसे बेचे जाते हैं और इनका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है किसी खरीदने वाले पे? Sold is a very different market. Work is a different thing. Okay. It's like the impact, the medical impact of a particular product as well as how they are sold. Okay. So, if I want to sell a condom, it's a product. Okay. If I want to sell a condom whose price is just 99 rupees, 100 rupees and everything, how market has played. Okay. ये वाला फ्लेवर, वो वाला फ्लेवर, ऐसे रिप ताकि उसका कार्ट वैल्यू बढ़े. ठीक है. वैसे कॉन्डम बिक रहा था 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15, 39. ओके. नाउ दे हैव मेड द पैकिंग एंड द पैकेजिंग, द फ्लेवर्स एंड एवरीथिंग टू अ वैल्यू ऑफ दिस. Whereas the functioning of the upper level product is not that good. ठीक है. फंक्शनिंग वो बेसिक लेटेक्स वाले की या वो अच्छी है, पर अब जितना उसमें वैरायटी डाल रहे हो महंगा है, लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, पैशन टू बाय बढ़ रहा है और उसका सेल ज़्यादा आ रहा है. ठीक है. ये सारे बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ है. ऐसी अगर हम आयुर्वेदा मार्केट में जाते हैं, शिलाजीत विच इज़ बीइंग बेम्ड एज की शिलाजीत के बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं, है ना. एक रीसेंट अपने स्टैंड अप में कपिल ने बोला था कि एक टाइम बाद कुछ काम नहीं आता, सिर्फ शिलाजीत काम आता है. राइट. सो शिलाजीत इज़ नॉट समथिंग दैट बूस्ट योर ओनली सेक्शुअल स्टेमिना. इट इज़ मेड फॉर ऑल योर बॉडी. शिलाजीत आपके हेयर से लेकर आपके पैर के टो के नेल्स तक हर जगह काम करता है. शिलाजीत इज़ फॉर द ब्लड फ्लो, बेटर ब्लड फ्लो, बेटर इम्यूनिटी, ओवरऑल फंक्शनिंग, वहाँ के लिए काम आता है. तो शिलाजीत को सेक्शुअल हॉरिजोन में ही डाल देना गलत है. बट मैम क्यों डाला जा रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत आसानी से अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, प्लस लोग अब उसे ऐसे जानने लगे. आई थिंक मेरी वीडियोज़ के बाद ज़्यादा ही हॉट में आ गया है शिलाजीत. आई थिंक वो सारे टॉप मोस्ट वीडियोज़ शिलाजीत के मेरे साथ हैं. तो शिलाजीत इज़ नॉट समथिंग, इवन इफ यू टॉक अबाउट माका रूट्स, ठीक है, गोक्षुरा है, गोक्षुरा के रूट्स हैं, वो भी वही हेल्प करते हैं जो शिलाजीत कर रहा है. प्लस इन्हें बेचे कैसे? अब बेचने के लिए ऐसे नहीं बोल सकते शिलाजीत खरीद लो, तो अब ऐसे बेचते हैं कि
टाइम बढ़ाना है तो ये ले लो, जबकि शिलाजीत हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स ऑन अदर सेगमेंट वेयर आई टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव मेडिकल वाला प्रोडक्ट विच इज़ वाइग्रा विच इटसेल्फ इज़ अ मेडिसिन, ओके, वो कम्प्लीटली एलोपैथिक जोन पे है, वो आपका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ा देती है, तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से यू गेट बेटर इरेक्शन एंड यू स्टे फॉर लॉन्ग. सो वाइग्रा इज़ अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, उससे ऐसे ही बेचना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, तो वो टाइम बढ़ाने वाली दवाई ही है, उसका और कोई तरीका, प्लस उसके आप ऐड नहीं चला सकते, उसको आप न्यूज़पेपर में सेल नहीं कर सकते हो, उसको आप टीवी एड्स में रन नहीं कर सकते हो, तो वो तो केमिस्ट के पास ही है, उसको तो बस डॉक्टर के थ्रू बुलवाना होता है कि ये खरीद लो, तो अल्टीमेटली इट विल गेट सर्कुलेटेड एनी हाउ. ऐसे सिमिलरली विद एन आई पिल, ठीक है, आई पिल का स्टिल आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिग्री में ऐड कर सकते हो या बता सकते हो, बट आधे से ज़्यादा लोगों को भी आई पिल भी नहीं पता है और दे डोंट नो हाउ आई पिल वर्क्स, करने से पहले खा लेते हैं, कितनी देर में आने नहीं पता चलता, फिर एटलीस्ट पीपल स्टार्ट कॉल 72 घंटे वाली गोली है, तो एटलीस्ट पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ 72 घंटे में कहानी है या इतनी देर में कहानी है, 24 घंटे वाली गोली है. तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके मार्केट सेल वैल्यू से बहुत अलग है, बट द मेडिकल थिंग्स दे प्रोवाइड वो बहुत डिफरेंट है. स्प्रे का मार्केट इतना ज़्यादा है, द सेक्शुअल स्प्रेज है ना, इतना मार्केट है, और मुझे नहीं लगता 1% लोगों को भी उसको यूज़ करना आता है. इट्स अ टोटल फेलियर प्रोडक्ट, लोग यूज़ ही नहीं करना चाहते. हाँ, ल्यूब्स नहीं पता. जब आपको सेक्स करना है वाटर बेस्ड ल्यूब का यूज़ क्यों कर रहे हो, वो बिल्कुल ग्लाइडिंग इफेक्ट नहीं देगी, ठीक है. आप ऑयल बेस्ड ल्यूब यूज़ कर रहे हो तो एलर्जिक रिएक्शंस चेक करने पड़ेंगे. तो खरीद तो लेते हैं हम कि खरीद लिया, बहुत डिस्गाइज में खरीद लिया, बट उनका यूसेज नहीं पता. तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट है ये बढ़ रही है, यू नो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट. दिस इज बीन इंक्रीजिंग, द सेक्शुअल प्रोडक्ट मार्केट बहुत बढ़ रहा है, बट all the consumers need to understand what I'm buying for. Do I really know इसमें क्या है, इसकी क्या मेडिकल एडवांटेजेस हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, प्लस क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Ma'am, there are people who get high on ecstasy pills. There are people who smoke up and have sex. There are people who consume alcohol and have sex. Is it a good practice? क्या ये सही है तरीका? क्या इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या इनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं? Whenever you are doing any sort of pleasurable activity, sex or masturbation, by using any sort of push-up, it can be steroids, it can be pill, it can be alcohol, drugs, anything, it is not real. Okay, it's all something else in your body doing it. ठीक है, तो जब आपको नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा तो आपको फिर लेना पड़ेगा, तो यू गेट इनटू एन एडिक्शन साइकिल. जो एक बार अल्कोहल लेके जिसको लगे ना बहुत बढ़िया हो गया, वो बिना अल्कोहल के कर ही नहीं सकता. ठीक है, फॉर समटाइम्स इट कीप्स यू अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एंड यू फील इलेटेड, यू फील हैप्पी, यू विल एबल टू डू इट, बट स्टिल दे आर पीपल जिनको लेने के बाद भी कुछ नहीं होता. ठीक है, ये जिन पे पिल काम ही नहीं करती, ये जिन पे ड्रग्स काम ही नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यू आर इनटू एन एक्सट्रीम बॉडी डिस्प्रपोर्शनेट. मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, योर माइंड एंड योर बॉडी इज नॉट इन सिंक. इफ़ योर माइंड एंड बॉडी इज इन सिंक एंड योर माइंड हैज़ एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अल्कोहल ले लिया या थोड़ा ये ले लिया काम करेगा, बट इट विल टेक यू इनटू एन एडिक्शन साइकिल. सो लॉन्गर टर्म इनमें से कुछ भी लेके करना इज नॉट रिकमेंडेड. और विड्रॉल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉल्स तो ये लोग मेरे ख्याल से कभी कभी लेते हैं. जो रेगुलरली कर रहे हैं, जो डेली पीते हैं, लेट्स से कईयों के घर में 8 बजे ही पापा बैठ जाते हैं पीने, है ना, हम सबके घरों में हर चौथे पांचवें घर में है ना. दे डोंट ईट मच, दे जस्ट टेक थोड़ा सा खीरा काट के और दिस बेसिक वाला थिंग, ओके, एंड दे आर टेकिंग इट डेली. फॉर देम देयर बॉडी हैज़ डेवलप टॉलरेंस, वो उतना बन गया उनका, वो रोज़ ले रहे हैं जस्ट टू कीप देयर मशीन गोइंग, तो वो उतना ही है उनके लिए. ना तो वो प्लस फैक्टर है ना वो नेगेटिव फैक्टर है. दे टेंड टू इवन स्लीप आफ्टर इट, तो वो तो उनके लिए वो मशीन है. जो लोग कभी कभी ले रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट बूस्ट योर परफॉर्मेंस. पहले तो ये मिथ है कि इससे कुछ नया नहीं होने वाला है. आपको प्रॉब्लम है और आप डिफेंस में यूज़ कर रहे हो, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ. इसको कब तक यूज़ करते रहोगे? इसका खर्चा और डॉक्टर कंसल्टेशन का खर्चा, इवन पैसे बचेंगे and your body will even feel better. We are approaching an end to this interview. Although I do have a few questions और बहुत ही quick bites आपने देने हैं, ठीक है. We want to debunk some myths. ठीक है, सबसे पहला है कि
men have a higher sexual drive than women? No, I think let's make it as an individual who are satisfied, happy, and successful in their life had good drives rather than somebody who is into mid of their life. So let's not make it a gender specific. Physical attraction is the most important factor for sexual compatibility. Yes, it is. Let's not make it as most important. Let's give us the first one that comes up. Because once you find somebody really attractive, it definitely makes you stick to that person. But agar और qualities नहीं है, तो definitely it will be in a long term thing. Only the appearance is concerned. Condoms make sex less enjoyable. No. The variety of condoms and getting to know that their variety exists make it more pleasurable and safe. Okay. Consuming food like red meat leads to infertility. Yes, consuming lots of, let's say, unsaturated fatty acids or lots of carbs and everything on a regular basis and not eating them in right proportion at the right time of the day makes your body incompatible for fertility and good sexual performance. Having kids can strengthen your relationship. Definitely, if you're taking it positively. But if you are already burdened in a relationship, having kids will make it more chaotic and worse. Women always bleed when they lose their virginity. No, not at all. And there is no concept like virginity exists in this era, and I don't want this concept to be in mind of anybody. Right. Thank you so much, ma'am. It was pleasure having you here with us on Heal It, wherein we were in a position to inform, educate, and empower the young generation. Thank you so much for it. Thank you, Saga, for having me, and I hope I'll be able to reach more people and just debunk lots of myths and give clarity on so many things.